to overcome a difficulty? Hmm. How to overcome a difficulty. Be perfectly sincere. Do not try to deceive yourself. Do not say, I have done all that I could. If you do not succeed, it means that you do not do all that you can. For if you truly do all that you can, you will surely succeed. If you have any defect which you want to get rid of and which still persists, and you say, I have done all that I could, you may be sure that you have not done all that you should have. If you had, you would have triumphed, for the difficulties that come to you are exactly in proportion to your strength. Nothing can happen to you which does not belong to your consciousness. And all that belongs to your consciousness, you are able to master. Even the things and suggestions that come from outside can touch you only in proportion to the consent of your consciousness. And you are made to be the master of your consciousness. If you say, I have done all that I could, and in spite of everything, the thing continues, so I give up. You may be already sure that you have not done what you could. When an error persists in spite of everything, it means that something hidden in your being springs up suddenly like a jack in the box and takes the helm of your life. Hence, there is only one thing to do. It is to go hunting for all the little dark corners which lie hidden in you. And if you put just a tiny spark of goodwill on this darkness, it will yield, will vanish, and what appeared to you impossible will become not only possible, practicable, but it will have been done. You can, in this way, in 1 minute, get rid of a difficulty which would have harassed you for years. I absolutely assure you of it. That depends only on one thing, that you truly, sincerely want to get rid of it. And it is the same for everything, from physical illnesses up to the highest mental difficulty. One part of the consciousness says, I don't want it, but behind there hides a heap of things which say nothing, do not show themselves, and which just want that things continue as they are, generally out of ignorance. They do not believe that it is necessary to be cured. They believe that everything is for the best in the best of worlds. As the lady with whom I had those conversations used to say, the trouble begins as soon as you want to change. A great French writer has repeated this and has made out of it his pet theory. Misery begins when you want to perfect yourself. If you do not wish to perfect yourself, you won't have any misery. I may tell you that this is absolutely wrong, but there are, all the same, things in you that want absolutely to be left alone, not to be disturbed in any way. Oh, what a nuisance you are! Leave us alone. इसके अंदर जो ये कह रहे हैं कि
सिंसियरिटी की बात, और सिंसियरिटी क्या है इसके कंटिन्यूएंस के अंदर एक रेफरेंस और है, वो मैं तुमको पढ़ के एक बार बता देता हूँ, फिर अपन इसको एक एक को, क्योंकि ये तो बहुत ही गंभीर चीज है। ये वॉल्यूम 6 है माँ का, पेज 132। एक कंटिन्यूएशन के अंदर ये आ रहा है, पर ये बीच में माँ बोल रही हैं, डू यू नो व्हाट परफेक्ट सिंसियरिटी इज? कि वास्तव में परफेक्ट सिंसियरिटी कहते किसको हैं? कि जो पूर्ण सच्चाई क्या है? नेवर टू ट्राई टू डिसीव वन सेल्फ, नेवर लेट एनी पार्ट ऑफ द बीइंग try to find out a way of convincing the others, never to explain favorably what one does in order to have an excuse for what one wants to do, never to close one's eyes when something is unpleasant, never to let anything pass, telling oneself that is not important, next time it will be better. Oh, it is very difficult. Just try for 1 hour and you will see how very difficult it is. Only 1 hour to be totally, absolutely sincere, to let nothing pass. That is, all one does, all one feels, all one thinks, all one wants is exclusively the divine. I want nothing but the divine. I think of nothing but the divine. I do nothing but what will lead me to the divine. I love nothing but the divine. Try, just to see, try for half an hour. You will see how difficult it is. And during that time, take great care that there isn't a part of the vital, or a part of the mind, or a part of the physical being nicely hidden there at the back, so that you don't see it. Mother hides her hands behind her back, कि अपने पीठ के पीछे यूं हाथ करके, ऐसा कोई पार्ट ऐसा नहीं हो जो पीछे छिपने की कोशिश करता हो, छिपा हो। एंड डोंट नोटिस दैट इट इज नॉट कोलिबरेटिंग, कि वो सहयोग नहीं कर रहा हो, सिटिंग क्वाइटली देयर सो दैट यू डोंट अनर्थ इट, कि उसको आप सरफेस पे नहीं लिया हो तो वो चुपचाप पीछे दुबक के बैठा है। इट सेज नथिंग बट इट डज नॉट चेंज, इट हाइड्स इटसेल्फ। हाउ मैनी सच पार्ट्स, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतें, हाउ मैनी पार्ट्स हाइड देमसेल्व्स। You put them in your pocket because you don't want to see them, or else they get behind your back and sit there well hidden, right in the middle of your back, so as not to be seen. When you go there with a torch, your torch of sincerity, आपकी सच्चाई की जो टॉर्च है उसको लेके जब जाते हो, you ferret out all the corners, everywhere, all the small corners which do not consent, the things which say no, or those which do not move. I am not going to budge. I am glued, मतलब मैं चिपक गया हूँ इस जगह के, to this place of mine, and nothing will make me move. You have a torch there with you, and you flash it upon the thing, upon everything. You will see there are many of them there behind your back, well stuck. अच्छे से चिपक के बैठे हैं वो. Try just for an hour. Try. तो ये सिंसियरिटी के बारे में एक माँ का है कि इसको आधा घंटे 1 घंटे ये ट्राई करो। ये तो सुन के भी कोई जरूरी नहीं है ट्राई करना, ये तो तुरंत ही समझ में आ रहा है। अब इसमें अपन इसको शुरू कर देते हैं। हाउ टू ओवरकम ए डिफिकल्टी। तो सबसे पहली ही बात है, बी परफेक्टली सिंसियर। डू नॉट ट्राई टू डिसीव योर सेल्फ। डू नॉट से आई हैव डन ऑल दैट आई कुड।
If you do not succeed, it means that you do not do all that you can. आप जो कुछ कर सकते थे आपने वो नहीं किया है. 4. If you truly do all, अब all को माने स्ट्रेस करके इन्वर्टेड कोमास में कि सारी चीजें जो भी उसके लिए आवश्यक हो सकती थी, अगर आप वो सच्चाई से वो सारी करते, you will surely succeed. Succeed in the sense, आपको कुछ समय बाद में इस पथ पे ये भी पता चल जाता है कि आप जिस ध्येय को या जिस चीज को लेके चले थे, अपने आप में वो भी इवोल्व होता जाता है, क्योंकि आज की समझ के आधार के ऊपर मैं जो गोल सेट करता हूं, जब मैं उसकी तरफ चलता हूं तो उसका सारा स्वरूप भी बदल जाता है. पर फिर भी अगर मैं फंडामेंटली ये कहूं कि परमात्मा मैं आपको चाहता हूं, मैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्या करूं मैं, ये जीवन मेरे को इस तरीके से बांधे हुए है, कैसे मैं आपकी ओर चलूं, अगर आप सच्चाई से ये कहते हो तो निश्चित ही आप कर पाओगे. पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे इतनी ड्यूटीज है, मेरे ये है वो है. उसके लिए माँ ने ये कह दिया कि ये सब ऐसे बहाने हैं या ऐसी चीजें हैं जो चिपकी हुई हैं पीछे, वो चाहती ही नहीं प्रकाश में आना. अगर सच्चाई की टॉर्च डालोगे तो वो तुरंत ये कह देगी झूठे बहाने हैं ये. तो कई बार क्या होता है कि हम उसको उनके ट्रू कलर्स में देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अंदर तो कहीं ना कहीं तो पता चलता है कि भी इसके अंदर कोई ना कोई है. तो ये हमको पता होता है डीप डाउन. अच्छा, अब इसके अंदर इफ यू हैव एनी डिफेक्ट विच यू वांट टू गेट रिड ऑफ, कोई भी डिफेक्ट आपके अंदर है जिसको आप गेट रिड ऑफ करना चाहते हो, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, एंड विच स्टिल परसिस्ट्स, और आप कहते हो अरे ये आदत या ये चीज ये तो अभी भी चल रही है, और एंड यू से आई हैव डन ऑल दैट आई कुड, और अगर आप ये कहो कि मैं जो कुछ कर सकता था इसको हटाने के लिए वो मैंने सब उपाय कर लिए, ये हटती नहीं है, तो इसका अर्थ है यू मे बी श्योर दैट यू हैव नॉट डन ऑल दैट यू शुड हैव. आपको जो उसके लिए करना चाहिए था वो सारा आपने नहीं किया. इफ यू हैड, अगर आप वो कर लेते, यू वुड हैव ट्रायम्फ्ड. फॉर द डिफिकल्टीज दैट कम टू यू, जो समस्याएं आपके पास आती हैं, आर एग्जैक्टली इन proportion to your strength. Nothing can happen to you which does not belong to your consciousness, and all that belongs to your consciousness you are able to master. अब ये एक फंडामेंटल बात है कि कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं आ सकती, ऐसी कोई चीज के आप संपर्क में नहीं आ सकते जो आपकी चेतना को बिलोंग न करती हो, और जो आपकी चेतना को बिलोंग करता है उसको आप निश्चित रूप से मास्टर कर सकते हो. इस बारे में सारों से पहले तो लेंगे कि क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ आपकी चेतना के अंदर है वो आप मास्टर कर सकते हैं. Even the things and suggestions that come from outside can touch you only in proportion to the consent of your consciousness. आपकी चेतना उसको जितनी कंसेंट देती है, जितनी स्वीकृति देती है, जितना स्थान देती है, उसी अनुपात के अंदर वो चीज आपको टच कर सकती है. एंड यू आर मेड टू बी मास्टर ऑफ योर कॉन्शियसनेस. और ये आपकी बाध्यता है, ये आपको सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसका मास्टर होना होगा. तो ये सारे टचेज आपको आपकी कमियां बताते हैं, या वो चीजें वो कॉर्नर्स बताते हैं जहां आपको लाइट डालनी है और जहां प्रकाश डाल के इनको मास्टर करना है.
even the things and हाँ ये तो हो गया. If you say I have done all that I could and in spite of everything the thing continues, so I give up. You may be already sure that you have not done what you could. When an error persists in spite of everything, it means that something hidden in your being springs up suddenly, like a jack in the box, and takes the hem of your life. Hence, there is one thing to do. It is to go hunting for all the little dark corners which lie hidden in you. And if you put just a tiny spark of goodwill on this darkness, it will yield, will vanish, and what appeared to you impossible will become not only possible, practicable. न केवल वो तुमको संभव या व्यावहारिक ही लगने लगेगा, बट इट विल हैव बीन डन. और जब वो प्रकाश, थोड़ा स्पार्क गुडविल की आप उसके ऊपर डालते हो, तो वो चीज या वो समस्या हल हो चुकी होगी. यू कैन इन दिस वे इन 1 minute get rid of a difficulty which would have harassed you for years. बरसों तक जिसने आपको प्रताड़ित करके रखा था, परेशान करके रखा था, बांध के रखा था अपनी उसी स्थिति में, वो समस्या विलीन हो चुकी होगी एक ही क्षण के अंदर, एक ही मिनट के अंदर. I absolutely assure you of it. That depends only on one thing that you truly, sincerely want to get rid of. And it is the same for everything, from physical illness up to the highest mental difficulties. पर अब इसमें समस्या क्या आती है कि हमारी जो विल है वो डिवाइडेड है. मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो संकल्प शक्ति है, एक पार्ट चाहता है, चेतना का एक भाग कहता है कि मैं इस चीज को नहीं चाहता, बट बिहाइंड देयर हाइड्स ए हीप ऑफ थिंग्स. पूरा का पूरा एक जत्था, पूरा का पूरा एक हीप, ढेर, ऐसा झुंड, समूह ऐसी चीजों का रहता है जो कहती है विच से नथिंग, डू नॉट शो देमसेल्व्स, चुपचाप छिपी रहती हैं, एंड विच जस्ट वांट दैट थिंग्स कंटिन्यू एज दे आर, जनरली आउट ऑफ इग्नोरेंस. They do not believe that it is necessary to be cured. They believe that everything is for the best in the best of worlds. फिर बाद में एक उदाहरण ये दे रहे हैं कि एक लेडी थी, उसने कहा जैसे ही आप अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसके साथ ही समस्याएं अराइज हो जाती हैं. अब पशु है, वो अपने आप के परफेक्शन की उसके बेचारे के कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसके लाइफ में कोई समस्या नहीं है. जैसे ही आप सेल्फ मास्टरी की, सेल्फ परफेक्शन की, इनकी बातें करते हो, वैसे ही जीवन में दूभर हो जाता है. इसलिए शांति से रहने का तरीका ये है कि आप परफेक्शन की ओर चलने की कोशिश ही मत करो. पर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पशु के जैसे यू लाई कंटेंट, आप संतुष्ट बैठे रहो अपने स्थान पे. पर ये तो चीजों को बिल्कुल गलत तरीके से देखना हुआ, और अपनी एस्पिरेशन इस तरीके की नहीं है. अब इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम, पहले तो 2 4 5 क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हम लें. पहले तो इन्होंने ये कहा कि कोई भी बार का टच, कोई भी चीज वो ही आपको टच कर सकती है, मूव कर सकती है, जो आपकी चेतना का अंग है. उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको टच कर सकती है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसके कारण आप कहो कि ये समस्या है जो मेरे को प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, हैरास करती है. तब इसका क्या अर्थ हुआ स्नेहा, क्या मतलब हुआ इसको कि कोई चीज आपकी चेतना को, कि नथिंग कैन हैपन टू यू विच डज नॉट बिलोंग टू योर कॉन्शियसनेस. क्या मतलब हुआ इसका? दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं, कितने टेररिस्ट के हमले होते हैं, हमारी चेतना से वो कैसे पर्टेन करते हैं? हम कहते हैं हमारा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है. देश में, विश्व में कितनी सारी चीजें हैं जो आपको विचलित करती हैं. हालांकि वो तो एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में चीजें चली गई,
पर आपके खुद के जीवन में ये कह रहे हैं कोई भी चीज आपको अगर टच करती है तो वो ही चीज हो सकती है जो आपकी चेतना से संबंधित है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो आपको टच कर सकती हो। इसलिए अगर वो आपकी चेतना का अंग है तो निश्चित रूप से आप उसको मास्टर कर सकते हैं। इस बात का क्या अर्थ है, ये अपन एक एक से ले लेते हैं। स्नेहा, इससे क्या मतलब हुआ इस बात का? क्योंकि अपन इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं, क्योंकि हम सबके सामने समस्याएं तो हैं, पर समस्या का एक तो क्राइटेरिया, ये कौन सी समस्या की बातें कर रहे हैं। ये माँ हमेशा ही जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रही है, जैसे भारतीय संस्कृति में कोई भी चीज किस परिप्रेक्ष्य में बात करी जा रही है, कि समस्याएं किस चीज में आपकी एस्पिरेशन है कि प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं, माँ ने कहा हो या नहीं कहा हो। पर ये ग्रुप जिसमें हम बैठे हैं उसमें हमारे सामने प्रैक्टिकल समस्या खाली ये है कि हमारी जो एस्पिरेशन है उसमें हम ये कहते हैं कि ये इतने इतने व्यवधान हैं। तो माँ का जो पूरा आविर्भाव हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कौन सी ये चीजें हैं, तो ये कौन सी ऐसी चीजें हैं स्नेहा, और इसका क्या अर्थ है कि वो जो आपकी चेतना को बिलोंग अगर न करती हो तो वो आप उसके संपर्क में नहीं आ सकते, इसका क्या अर्थ है? भैया, मैं इस चीज से समझ रही हूँ कि जैसे कि अ, माँ यहाँ कह रही हैं कि अगर इफ यू हैड यू वुड हैव ट्रायम्फ्ड, मतलब जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं, तो पहली चीज है कि हम जो बोलते हैं कि हम ये कर नहीं पा रहे या हम उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम सच में उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम अपने एक बहुत ही एक लिमिटेड या कंफर्ट जोन में रह के कोई चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, बट नहीं, उसमें अपन हम इसमें अपनी जो बात है उसको बहुत बिल्कुल एक फोकस्ड इस पे करते हैं कि इस ग्रुप में एक कॉमन एस्पिरेशन है कि माँ के प्रति अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपन किस तरीके से उत्सर्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अपना और कोई ध्येय है ही नहीं। इसमें डिफिकल्टी की मैं बात नहीं कर रहा कि मेरी पर्टिकुलर कोई चीज ऐसी है, मेरे व्यापार में कोई है या इसकी, वो भी उसी चीज का अंग है। अगर माँ के प्रकाश से कोई भी चीज उसमें आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, पर अभी अपन बिल्कुल फोकस में इस चीज को रखते हैं कि जीवन का एकमात्र अगर हम ध्येय ये करें कि हमारी जो एस्पिरेशन है, किस प्रकार माँ का हमारे अंदर प्रतिष्ठापन हो, माँ हमारे अंदर स्थापित हो, उस चीज के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन कितना रिफ्लेक्ट कर पाता है। एस्पिरेशन तो बहुत आगे निकल जाती है, पर हम कितना जकड़े महसूस करते हैं, या कितनी ऐसी चीजें हैं, जीवन निकल जाता है छोटी छोटी चीजों के अंदर। जीभ का स्वाद है वो हमको बांध लेता है, उस समय मेरे को चाय चाहिए तो चाहिए। तो वो छोटे छोटे ऐसे कॉर्नर्स हैं जिसको हम क्वेश्चन भी नहीं करते, वो हमको जरूरतें महसूस होने लगती हैं। इसके अलावा मतलब फिजिकल हैबिट्स हैं वो बांध लेती हैं। हमारी जो वाइटल हैबिट्स हैं, उसके पैशंस हैं, उसकी क्रेविंग्स हैं, उसकी डिमांड्स हैं, वो हमको बांधे लेती हैं। हमारा सोचने समझने देखने का तरीका है, उचित अनुचित का तरीका है, ये मान के चलना कि भी ये पर्टिकुलर जाति तो गड़बड़ है, ये तो है ही बेकार, या इसके अंदर की कांग्रेस तो है ही थर्ड क्लास, या ये वाली पार्टी रद्दी है, ये तो तौर तरीका ही बेकार है, शादी के ये तौर तरीके हैं, समाज के ये तौर तरीके होने चाहिए। ये सारे मतलब इसमें अपन तो गहराई से अगर देखें तो वास्तव में हम इतना बंधे हुए हैं कि माँ की जो चेतना का आविर्भाव है ये खाली एक लिप सर्विस तक ही रह जाती है, व्यवहार के अंदर पूरी तरीके से आ नहीं पाती कि माँ पूर्ण रूप से हमको एक यंत्र के रूप में काम में लें। हम कहते हैं और अच्छा लगता है ये कह के, पर प्रैक्टिकली क्या होता है उसके लिए तो हमको जितनी बारीकी से माँ ये कह रही है, अगर इतना ही इजी होता
तो कुछ लोग तो एकदम चरम पे पहुंच जाते हैं इस पे, भाई हम जैसे ही थोड़ी हैं और लोग, हम ये तो मान के चले कि दुनिया खाली थोड़ी होगी लोगों से, ऐसे लोग भी होंगे जो प्रयास करते होंगे। पर कितना स्ट्रेस देती है माँ कि अगर आप सब कुछ, इफ यू ट्रूली डू ऑल दैट यू कैन, पर वो होता नहीं, क्योंकि हमारी हेरिडिटी से कितनी सारी चीजें मिली होती है, एटाविज्म से कितनी सारी चीजें हमको मिली होती हैं। हम जिस तरीके की स्कूलिंग से आए हैं उसमें ही हमको तो करीब करीब खत्म कर दिया जाता है सोचने समझने का, समाज को देखने का तरीका। माँ श्री अरविंद के हिसाब से थोड़ी मोल्ड हो रहा है। हमारी जो एस्पिरेशन है, माँ के ऊपर जो फेथ है, आपकी भावनाएं कितना तक वो उसका सहयोग करती हैं, जो श्री अरविंद और माँ कहते हैं, बिल्कुल बिट्रे करती हैं उसको, तो धोखा देती है, उसका सहयोग करती ही नहीं। इसलिए अब ये जो कह रहे हैं कि आपकी चेतना का जो को के अंदर वो आएगी ही नहीं ऐसी चीज, जो आप कह रहे हो कि आपको टच कर सकती है, इसका मतलब वो आपकी चेतना का अंग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? समाज में, देश में, वातावरण में आप ऐसी किसी चीज के संपर्क में नहीं आ सकते, ऐसे किसी, आपको इंट्यूशन है, आपको कोई विजन है, कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो आपकी चेतना से, कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, कोई आपको अंतर्दर्शन इस तरीके का नहीं है जो आपकी चेतना को बिलोंग न करता हो, आप उसके संपर्क में आ ही नहीं सकते। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये स्नेहा खाली एक बार इसी परिप्रेक्ष्य में कि मेरी नौकरी नहीं लग रही इसलिए मैंने ये प्रयास किया, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम प्योरली इसमें हैं कि हम अपना जीवन, या हमारे अंदर हम मान के चलते हैं कि ये एस्पिरेशन है कि हम अपना जीवन माँ को पूर्ण रूपेण दे दें। उस पथ के अंदर हम ये कहते हैं ये समस्याएं हैं, परिवार नहीं मान रहा, मेरे ये समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं। कोई कहता मेरे बेटी की शादी करनी बाकी है, दूसरा कहता मेरे साथ ये चीजें चल रही है, तीसरा कहता ये चीजें चल रही है, चौथा, मतलब इतने बहाने, या उसको तो बहाने नहीं लगते, उसको तो वास्तविकता लगती है वो। इन चीजों की यहां हम बात कर रहे हैं। तो इसी के अंदर, क्योंकि डिफिकल्टी तो हर स्तर की हो सकती है, इसीलिए माँ ने आगे कह दिया कि फिजिकल इलनेस से लेके हाईएस्ट मेंटल डिफिकल्टीज तक भी। इसलिए हम कोई फिजिकल एलिमेंट्स की यहाँ बात करें उसकी जरूरत नहीं है, हम तो अपनी हाईएस्ट जो एस्पिरेशन है उसके मार्ग में कौन कौन सी चीजें हमको रोक रही है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की तुरंत में ये है कि हम माँ के साथ पूर्ण रूप से कैसे मिल जाएं, और कौन सी चीजें हमें हमको बांध रही हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हम उनके बारे में हम सचेतन हो जाएं तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, सबके लिए, कि हम पूर्ण रूप से माँ के साथ कैसे युक्त हो जाएं, कैसे ऑफर कर दें अपने आप को, उसके साथ कैसे जुड़ जाएं। तो उसके अंदर अब बताइए कि कोई भी जो डिफिकल्टीज आती हैं, इस परिप्रेक्ष्य से सोचो। स्नेहा। भैया, जो हम पिछली बार कॉन्शियसनेस के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे थे, तो उस समय भी हम आपने बताया था कि हर चीज जो है, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। मतलब वो एक हम जो भी हैं, आई मीन जो हमारा एक जिसको हम कहते हैं कि हम हैं, तो हमारा अस्तित्व जो है वो जो वाइडर कॉन्शियसनेस है, जो सब चीज को खुद के अंदर उसने लिया हुआ है, तो हम इंडिविजुअली भी उसी कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं। और जो कुछ भी उस उस कॉन्शियसनेस में है, हम उस चीज से अलग नहीं है, हम में भी वो सारी चीजें हैं। जो ये डिफिकल्टीज अभी आप बता रहे हैं, कोई अब कुछ यहाँ बोलता है। उल्टी बात है, ये बात उल्टी कर रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो कि हम उस एक व्यापक चेतना है उसका अंग है, ठीक बात है, पर ये कह रहे हैं वो व्यापक चेतना भी आपका ही अंग है। मतलब आप अगर परमात्मा के भी दर्शन करते हो तो आपकी चेतना का ही प्रोजेक्शन है परमात्मा भी। अब ये तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई ना। भाई आप ये कहते हो कि आप परमात्मा के अंग हैं,
पर यहां ये कह रहे हैं कि अगर आप परमात्मा के भी संपर्क में आते हैं, आपको उनका भी विजन होता है, तो वो भी आपके ही चेतना का एक अंग है, उससे अलग चीज नहीं है। यही तो कह रहे हैं ये भाई। क्या कह रहे हैं ये? नथिंग कैन हैपन टू यू विच डज नॉट बिलोंग टू योर कॉन्शियसनेस। जो आपकी चेतना को बिलोंग नहीं करती, मतलब अगर परमात्मा का भी विजन आपको हो रहा है तो वो आपकी चेतना को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब अपन जिस तरीके से चेतना को सोच रहे हैं या इस चीज के मायने निकाल रहे हैं, मां कुछ और कन्वे करना चाह रही है इसके थ्रू। तो वो क्या कन्वे करना चाह रही है? भैया नहीं कुछ समझ में आ रहा है। सर मैं कुछ बोलूं? हेलो। जी जी, खंडेलवाल जी बोलिए। सर इसमें दो राय नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और समझ में तो आ रहा है मगर शब्द नहीं हम व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसको व्यापकता में लें तो हम तो पूरे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें डिस्टर्ब नहीं करी, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दैट वन। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई भी चीज हो। अब इसको हम माँ के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, जैसे कि आपके साथ जीवन में हुआ या हमारे साथ हो रहा है। आप एक एक चीज लें। आप यही तो कह रहे हैं कि जैसे कि मेरे घर में कोई काम है और कोई माता जी का काम है, तो हम ये बहाना मार लेते हैं साहब मेरे बेटे की शादी है, मैं ये माता जी का काम नहीं करूंगा। तो क्या आप यही चीज पूछना चाह रहे हैं ना कि हम उसको किस तरह से उस चीज से अनइफेक्टेड रहे और इफेक्टेड रहे? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी माता जी से जुड़ना तो यह है। आपने पहले कह दिया कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम माता जी का काम करें। कम से मगर कम जब हम इस ग्रुप में बैठे हैं उन लोगों के लिए, जी इस जी ग्रुप में तो बैठे हैं हम, अपनी जो ये प्रश्न है उसको बिल्कुल फोकस ये करते हैं, क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि इस ग्रुप में एक साथ बैठने का एकमात्र उद्देश्य हमारा ये है कि माँ की ओर जो हम चल रहे हैं वो ही हमारा एकमात्र सबका कॉमन गंतव्य है। तो आप जो कह रहे हैं वो तो आगे का प्रश्न है। पहले सबसे पहले तो हमको इस पे आना पड़ेगा कि जो कुछ भी है, कोई चीज हमको टच करती है, वो हमारी चेतना का ही अंग है। इसका क्या अर्थ हुआ? विश्व में तो पता नहीं क्या क्या चीज चल रही है। तो इसलिए नथिंग कैन हैपन टू यू विच डज नॉट बिलोंग टू योर कॉन्शियसनेस, इस बात को कैसे लिया जाए ये मुश्किल है। ये कह के तो अपन इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए एक एक चीज के अंदर सारा रहस्य छिपा होता है। सारी चीज, सारी गुत्थी घूम जाती है। और कई बार क्या होता है कि वो इनकन्वीनियंट सा लगता है, इसलिए हम उस चीज को छोड़ देते हैं, और जो चीज सहज सी लगती है उसके मायने अपने तरीके से निकाल लेते हैं। और इसी कारण क्या होता है कि जीवन में हम मां श्री अरविंद को अपने तरीके से पढ़ते हैं, ये प्रयास नहीं करते कि वास्तव में वो इसके द्वारा कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हम वो क्या कहना चाह रहे हैं ये डेफिनेटली ये कह पाए कि हाँ यही बात कह रहे हैं, और एटलीस्ट कम से कम हम जहां हैं उससे आगे जाने की तो स्थिति में होंगे। तो ये सबसे पहले तो इस पे आए। हम ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, माँ कर रही है सब। नहीं नहीं, वो तो कर ही रही हैं। हम नए भी कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो अच्छा नहीं कर रही हैं, तो भी उससे माँ की वर्किंग में तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये कह देते हैं कि ये चीज सही नहीं है, हमारे पर्सनल जो एक्शन का तो प्लान, हम उससे कह सकते हैं कि इसके अंदर मैं भागीदारी कितनी दूंगा या क्या नहीं दूंगा। बाकी तो वैश्विक गतियां जो चल रही है उसमें हम चाहे नहीं चाहें वो तो चल ही रही है। आज जो भी परिणाम अगर किसी भी इलेक्शंस के आते होंगे, मैं जिस पार्टी को वोट करता हूं मैं चाहता हूं कि वो ही इलेक्शन में जीते, पर कितनी बार जीतती है और कितनी बार हारती है। तो इसलिए इन मुद्दों की बात नहीं हो रही, और अपने को इसमें पीछे गहरे ये जाना है कि नथिंग कैन हैपन टू यू, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपकी चेतना को बिलोंग नहीं करता। और जो कुछ आपकी चेतना को बिलोंग करता है आप उसको मास्टर कर सकते हैं। इसको हम कैसे समझें? अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें चेतना हम जिस तरीके से समझते हैं उसके दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम अपनी चेतना में कोई एक इश्यू आया और हम उसको मास्टर कर पाएंगे,
पर पहले तो हम अपनी चेतना कितनी सीमित दायरे में मानते हैं, अपने व्यक्तित्व को हम छोटा सा ये मन प्राण शरीर, हालांकि इसके बारे में भी हम कितना सचेतन है, हम बहुत ही कम जानते हैं। आपके शरीर के जो क्रियाकलाप है, आपकी वर्किंग है कि हार्ट कैसे काम करता है, साइंस के माध्यम से तो आप जानते होंगे, और साइंस भी कितना रहस्य में गया है, तो भी अभी तो आप शरीर तक के रहस्यों को नहीं जानते। आपके कितना क्लोज है आपका फिजिकल हार्ट, उस वो किस तरीके से काम कर रहा है वो आप जानते थोड़ी हैं। आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, पढ़ के तो आप जानते हैं, पर आपकी बॉडी में कैसे काम कर रहे हैं आपने कभी देखे नहीं। ये तो फिजिकल की बात है जिसको हम हमारे सेंसेस से टच है, उसको सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्राणिकता है, वाइटल के बारे में माँ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने के कारण हम थोड़ी बहुत बात कर पाते हैं, पर वास्तव में क्या हम सचेतन हैं, और जितना हम सचेतन हैं क्या उतना इनफ है। और उसके अलावा माइंड का जो स्वरूप अपने आप में है, हम कितना उसके बारे में जानते हैं, हम कितना विचार आज तक हमने कोई ऐसा मूलभूत विचार पैदा किया है। हम तो जितने विचार हमको परोसे जाते हैं वातावरण के द्वारा, मीडिया के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, परिवेश के द्वारा, उन्हीं को मान लेते हैं। मूलभूत विचार कौन इसमें से क्लेम कर सकता है कि हम फंडामेंटली सोचते हैं? इस तरीके से अब ये बताइए कि नथिंग कैन हैपन टू यू, माँ की कृपा तो कर ही कर रही है। वो तो हम ये नए भी पढ़ेंगे तो भी माँ की कृपा काम करेगी, वो तो कण कण में भी कर रही है। माँ की कृपा तो गधे के अंदर भी काम कर रही है। पर सेल्फ परफेक्शन की, माँ की ओर चलने की जैसे ही हम बात करते हैं, एक आम व्यक्ति में भी कर रही है, पर उसके साथ ये चीजें लागू नहीं होती। साधना की जो चीजें हैं, सेल्फ परफेक्शन, वो सारी चीजें तो आप कॉन्शियसली माँ की तरफ चलते हैं तभी शब्द अराइज हो रहे हैं, नहीं तो पूरी दुनिया ही माँ की ओर चल रही है यूं तो उनको हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो भी साधना कर रही है। हालांकि यूनिवर्सल साधना तो चल ही रही है क्योंकि परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य जाने अनजाने उस ओर चल रहा है, पर वो तो किसी भी समस्या को सुलझाने का तरीका नहीं हुआ। ये अपने को फोकस इसी के ऊपर करना होगा। मारोदिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटी सी घटना से जोड़ता हूँ इसको कि माँ के काम के लिए गोलमोल एक बहाना हमारा ये होता है, जब हमें करने की इच्छा नहीं होती है तो कह देते हैं कि ये बाद में आएगा, ये प्रश्न बाद में आएगा। मारोदिया जी, अपना बहुत फोकस खाली एक चीज पे कीजिए, खाली फोकस इसी चीज के ऊपर है कि आप ऐसी किसी भी चीज से मीट नहीं कर सकते, उससे कभी आप संपर्क में आ ही नहीं सकते। आपके ध्यान में, आपके अनुभव में, आपके अंतर्दर्शन में परमात्मा के भी अगर आपको दर्शन होते हैं, वो भी एकमात्र आपकी ही चेतना का अंग है, अदरवाइज आप उसके संपर्क में नहीं आ सकते। आपके जीवन में कोई भी समस्या भी आप बोलते हैं, आप किसी भी चीज के संपर्क में आते हैं, वो आपकी चेतना का अंग है, इसलिए उसके संपर्क में आते हैं। और क्योंकि आपकी चेतना का वो अंग है, इसलिए आप उसके ऊपर प्रभुत्व पा सकते हैं। इस सेंटेंस का लिटरल अर्थ ये है। अभी अपन खाली इसी के ऊपर फोकस करेंगे, और इतना इस ग्रुप में तो सारे मैच्योर हैं कि इसी एक के दायरे से बाहर न जाएं। हम इसके ऊपर माइंड को फोकस करेंगे। देखिए, माइंड इधर उधर भागता है, आप देख पा रहे हैं कि हम सब अवस्था के हिसाब से तो पूरे मैच्योर हैं, और माइंड को के हिसाब से अभी देखिए कि समस्या से भागने की कोशिश है, क्योंकि माइंड की प्रकृति है इस तरीके की। अभी खाली इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे पहले तो, कि क्यों आप किसी भी समस्या या कोई भी समस्या न भी हो, आप परमात्मा के भी संपर्क में आते हैं तो वो भी आपकी ही चेतना का एक अंग है, उसको बिलोंग करता है, इसलिए आप उसके संपर्क में आते हैं। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में, इस अर्थ में परमात्मा भी आपका ही प्रक्षेपण है, यही हमारा वेदांत कहता है। नहीं तो एकमेवाद्वितीयम तो कैसे हो सकता है? एकमेव सत्ता कैसे हो सकती है? अगर दो जने होते ही तो एकमेव नहीं रह सकता। तो अगर एकमेव है तो फिर हम यहां 6-7 जने तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम संपर्क में आ रहे हैं, तो सारी चीज को कैसे सुलझाएंगे? थोड़ा तो मानसिक स्तर पे हम कोशिश करें कि कैसे इसको सुलझाएं, कि हमारी चेतना में कोई भी चीज प्रवेश ऐसी नहीं कर सकती जो हमारी चेतना का अंग न हो।
और अगर हमारी चेतना का अंग है तो निश्चित रूप से हम उसको मास्टर कर सकते हैं। ये खाली एकमात्र इसी चीज पे अपने को कंसंट्रेट करना है, पहले तो इसी के ऊपर अपने को टिकना है। अब इसमें बताइए। अवचेतन के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी चीजें अवचेतन में दबी रहती हैं और इसी के कारण हम उनको ओवरकम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो हमारी चेतना का अंग होता है। तो हमें अपने आप को पहले एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद ही हम उसके बारे में आगे प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें नहीं, किस उसका तरह आप से। कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका हम एनालिसिस, ये जिस चीज की बात कर रहे हैं जो आपकी सचेतन जो चेतना के अंदर आ रही है, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं उसी के लिए तो श्री अरविंद सुप्रामेंटल की बात कर रहे थे। जो अतिमानसिक चेतना की श्री अरविंद बात कर रहे थे वो तो उस मूलभूत पहेली को सुलझाने की बात कर रहे थे कि आप कितना भी कोशिश कर लेंगे तो भी जो अज्ञान है, जड़ता है, मृत्यु है, आप कितना भी कोशिश करें तो भी भगवान के विरुद्ध जो चीजें जाती हैं, पर हम उनकी बातें नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि हमारी चेतना के अंदर जो चीज आती है हम इसको समझें। अभी तो कि हमारी चेतना में कोई चीज आई जो उसको बिलोंग करती है, उसको हम निश्चित रूप से मास्टर कर सकते हैं। मतलब हम विश्व में या अंदर, आपके बाहर, आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपको, आपके सेंसरी परसेप्शंस हैं, आपके जो सोचने समझने के तरीके हैं, उनके माध्यम से आप बाहर जिनके संपर्क में आते हैं। सब्जेक्टिव आपके आत्मपरक जो चीजें हैं उनके जैसे आप संपर्क में आते हैं। जैसे कोई पेंटिंग देखी, ऑब्जेक्टिवली 4 जने उस पेंटिंग को देख रहे हैं, पर सब्जेक्टिवली उसको कैसे कैसे फील कर रहे हैं वो तो हर 4 जने अलग अलग फील कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिवली वो उसके कितने विश्लेषण में गहराई से जा पाएंगे, ये इस पे निर्भर करेगा। आपकी नेत्र शक्ति कितनी भी अच्छी हो, भाई 4 जनों की आई साइट बहुत अच्छी है, एक जने की आई साइट उतनी अच्छी न भी हो तो भी उसका विश्लेषण कितनी गहराई के ऊपर जाके वो कर सकता है, वो उसकी आत्मपरक जो चेतना है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आपकी सब्जेक्टिव जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो आंतरिक चेतना है, वो कितनी विकसित है, उस आधार पे आप उसका विश्लेषण कर पाते हैं। तो अपना मूलभूत प्रश्न ये है। अब फिर से आप कोशिश कीजिए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ आपसे सुनने की ज्यादा अभिलाषा है। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन शब्द नहीं उसके लिए तलाश पा रहा हूँ। यानी कोई नहीं, इसके अंदर आप ये तो समझ पा रहे हैं कि ये इतना इजी मैटर नहीं है। जी जी इसके जी। अंदर विनीता कोई बात कहना चाह रही है। नहीं भैया। जीतू, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये ऐसे बोलना चाहते हैं, मतलब माता जी ऐसा कह रहे हैं कि जो भी चीज हमारे संपर्क में आती है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, ठीक है, और जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हम चेतना चाहती है तभी अनुभव कर रहे हैं, या उससे मैं भी वही है, शब्द नहीं मिल पा रहे। मैं कब से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे बोल, ठीक है। समझ रहा हूँ थोड़ा इस चीज को, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कि जो भी चीज से हम संपर्क में आ रहे हैं, जो भी अनुभव आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमारी चेतना समझो एक तरह से चाहती है या उसके लिए जरूरी है। इसके लिए ही इन चीजों को हमारे सराउंडिंग में जो भी अनुभव है वो हो पा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। हाँ रविकांत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम साक्ष्य भाव से देखते रहेंगे तो उसको वो हमें टच नहीं करेगी। नहीं, टच करने की और उसकी बात नहीं कर रहे, पर आप कोई भी एक्सपीरियंस, आपने कोई अनुभव किया, वो अनुभव
आपने अगर श्री अरविंद के पत्र पढ़े हों, माँ और श्री अरविंद की छत्र छाया में उसी डाइनिंग रूम का भोजन कर रहे हैं, वहीं उसी आश्रम में रह रहे हैं, गुरु सबके समान हैं कि माँ और श्री अरविंद सबके गुरु हैं, फिर भी सबको जो उत्तर माँ और श्री अरविंद दे रहे हैं, एकमात्र कोई एक तरीका नहीं बता रहे, जो जो उनको अनुभव हो रहे हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं। तो इसलिए साक्षी भाव तो एक बहुत अलग बात है। साक्षी का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा और मैं खाली देखता हूं चीजों को, ये बात नहीं कह रहे इसके अंदर। आपकी कितने रुपए देने हैं उसको? हाँ जी, 200 रुपए लो, 200 रुपए लो, हेलो। पहले दे के आओ। हाँ जी, खंडेलवाल जी बोलिए। हेलो। मेरे से आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए, आप जो कह रहे हैं इससे देखिए, इस डिस्कशन का फायदा ये है कि कितनी सारी चीजें हम उसके तरीके से हम सोचते हैं कि इसका ये उत्तर है, इसका ये है, जब तक हम उसके लिविंग एक्सपीरियंस तक नहीं जाएंगे, या फिर कितनी सारी ऐसी धारणाएं हमने बिठा रखी है और उसको हम एक्सपीरियंस मान बैठते हैं। इस डिस्कशन का ये फायदा, हम ये कह सकते हैं नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है, जिसके जो जो चीजें समझ में आ रही है, तो एटलीस्ट कम से कम ये तो पता चले कि हम जिस तरीके से सेंस कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, और इसी तरीके से अगर हम संसार को देख रहे हों इन धारणाओं के माध्यम से, तो हमको जैसा जगत दिख रहा है उस पर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा अपनी गलती को, कि वो अगर गलत जोड़ बाकी कर रहा हो और उसको ये न कहा जाए कि 2 और 2 का जोड़ इतना होना चाहिए, तो सोचिए आप जीवन भर अगर उसी तरीके से वो जोड़ता रहेगा, तो उसको जो गिनती या जो जोड़ बिठाएगा और जो सारा काम करेगा उसके आधार पे, अगर मेरा मेजरिंग यार्ड ही गलत हो और मैं सारा नाप ही उसी से करता रहूं, बिना ये कभी भी उसमें डाउट किए कि मेरा मेजरिंग जो यार्ड है क्या वो सही है या गलत है, वही चीज इसके साथ लागू हो रही है कि हम सामान्यतः जिसको चेतना, इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। स्नेहा, इतनी देर में कोई बात आई? भैया बहुत उलझ गए। जब शुरू में मैं इसको रीड कर रही थी तो बहुत इजीली ये लाइन समझ में आ गई थी, लेकिन जो एग्जाम्पल्स के साथ जो आप समझा रहे थे तो वो वही बात थी कि हम अपने हिसाब से चीजों को समझ रहे हैं, माँ जो कह रही है वो नहीं समझ रहे। तो कुछ कहना है नहीं, कि शायद मेरे को लगता है समझ मैं कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। मैं बहुत, आप जो बोल रहे हो और जो मैं समझ रही हूँ, वो मैं दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये जो प्रश्न आप अभी पूछ रहे हो। जब भी अंकल बोले कि चूंकि मैं भी बोली कि हम वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के एक पार्ट है, तो हम अनअफेक्टेड कोई भी ऐसी चीज से नहीं रह पाएंगे जो यूनिवर्सल है और हम में भी है, क्योंकि हम भी उसके चूंकि पार्ट हैं। तो जो भी, चाहे वो डिफिकल्टीज हो या कोई भी तरह का एक्सपीरियंस हो, अभी जीतू भैया ने जैसे कहा कि जो हमारे लिए जरूरी है, और अभी फिर आपने कहा कि मास्टर अरविंद इतने लोग थे, सबको अलग अलग जवाब देते थे। तो जो चीज हमारे प्रोग्रेस के लिए जरूरी, हमारे कॉन्शियसनेस के प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, वो हम हर चीज को अनुभव करेंगे, वो हर चीज हमारे मतलब लाइफ में होगी। मेरे को जो समझ में आया। नहीं, वो तो ठीक बात है। ये तो इस आधार पे तो ये मतलब हुआ कि ये हमारा आधार हो गया कि ये जब हम चलते हैं आगे, तो ये कि मेरे जीवन में इसका कोई न कोई माँ का उपयोग है, इसलिए ये घटना आई है, इसका तो यहां तक तो हो सकता है। पर अपन जिस बात की बात कर रहे हैं, हाउ टू ओवरकम ए डिफिकल्टी, अरे भी उस डिफिकल्टी को आप सच्चे मनोभाव में अपॉर्चुनिटी तो मान सकते हो, पर क्या मतलब हुआ उसका अपॉर्चुनिटी मानने का? आप उसको मतलब सोल्व किस तरीके से करोगे? आपको अगर माने कोई असफलता हो गई, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए आप गए, एक कोई माँ ने कहानी बताई कि विदेशी आया, जैसे उसके पास कोई घड़ी थी, पहले जब वो
वो घड़ी होती थी ना, वो कमर में बांधने की, या जिसके चेन बंधी होती थी, ऐसे कोई टाइम पीस था उसके पास। जब वो नाव से उतर रहा था बंदरगाह के ऊपर, वो घड़ी फिसल के उसकी पानी के अंदर गिर गई। उसको बड़ी प्रिय थी, वो कभी छोड़ता नहीं था उसको। अब तुरंत उसके ये मनोभाव आया कि चलो, एक आसक्ति थी, इंडिया का ये असर है कि वो मेरी आसक्ति भी मेरे से छूट गई। ये तो एक मनोभाव हुआ। आप ये कैसे मनोभाव की सच्ची दिशा कौन सी है, आपको इस समय फेल होना मां की कृपा है, या इसके अंदर आप अनंत काल तक प्रयास करते रहेंगे, तो आपको उसमें प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, असफल होना उस समय सही है। आप उसको डिफिकल्टी मानेंगे, या वो मतलब एक गलत दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। जैसे गेट एक साइड में है, आप अपना सिर जो है दीवार के भिड़ा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी तो मैं सिर से फोड़ भिड़ा के और यहाँ गेट निकाल दूंगा। अब क्या इसको सही माने? अरे भाई, गेट में से घुस जाओ, तुम सिर भिड़ा रहे हो इसके, वो रास्ता नहीं है। तो माँ ने इस समय कृपा करके तुमको उसमें असफल किया है, या माँ तुमको उस पर ओवरकम करना चाह रही है। मतलब कैसे देखें इसको? आपको नौकरी न मिली, आप कह रहे हो मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं मेरे को नौकरी मिल जाए, मां कोई दूसरा विधान चाह रही होगी, तो उसमें असफल होना सही है या आपको प्रयास, हाउ टू ओवरकम ए डिफिकल्टी, तो वो डिफिकल्टी है या नहीं, ये तो और भी एक फंडामेंटल प्रश्न हो गया। कारण क्या है कि आप वास्तव में आपका जो जीवन है उसको वैसे ही चलाना चाहते हो, थोड़े बहुत डेकोरेशन के साथ में। यही मां इसके अंदर आगे कह रही है। इसीलिए वो आगे कह रही है कि जैसे ही सेल्फ परफेक्शन की बात आती है वैसे ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भाई, आपको ये कहा जाए कि अब मां के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर दो, आपका सोचने समझने का जो तरीका है, आप सेशन ऑर्गेनाइज कर लोगे, सारी चीजें कर लोगे, और आपको ये कह दिया जाए कि आपका जो सोचने समझने का तरीका है उसको भी उठा के मां को दे दिया, जो आपका राइट रोंग का तरीका है, जो आपका सोचने समझने का है, आप जो हो वास्तव में, जो पर्सनैलिटी आप हो, उसके अलावा मां जैसी चाहे वैसे आप बन जाओ, आप इसकी गंभीरता शायद समझ ही नहीं पा रहे। तो ये अब बताओ, इसके अंदर ये क्या, इसमें स्नेहा कोई चीज समझ आती है? भैया, शायद जो प्रश्न आपने पूछा था, शायद उसका जवाब आपने अभी दिया कि चूंकि हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, या तभी ये डिफिकल्टीज, तब ये जो सारी चीजें हैं तब हमारे सामने आती हैं। शायद बस इतना हाँ, ही नहीं, मेरे को समझना है। ये तो सही बात है कि जैसे ही आप परफेक्शन की बात करते हैं तो ही समस्याएं, यूं तो जीवन में भी खैर समस्याएं आती ही हैं, फिर भी जिस सेल्फ परफेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं डिफिकल्टी आती है के बाद उसको कैसे ओवरकम करें। हम उस बात पे आ रहे हैं कि उसको ओवरकम कैसे करें। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप जो डिफिकल्टी आपको लग रही है वास्तव में तो आपकी चेतना में कहीं न कहीं वो बिलोंग करती है, इसलिए आप उसके संपर्क में आते हैं, और जो कुछ आपकी चेतना को बिलोंग करता है उसको आप निश्चित रूप से प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ छोटे छोटी अपन ऐसी चीजें लेके चलें जिससे थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव इसका वाइड हो जाए। कि सबसे पहले तो आप जैसे बाजार में गए, आपको पर्टिकुलर कोई चीज वहां से खरीदनी है, या आप कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे हों, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, निष्क्रिय से आप बैठे रहते हैं, जैसे ही आपकी ट्रेन का या जो आपको रिलेट करता है वो अनाउंसमेंट होता है तुरंत आप सजग हो जाते हैं। दूसरे, जब आप बाजार में जाते हैं, हजार तरीके की चीजें खोज रहे होते हैं, आप वहां से वो ही सौदा लेके आते हैं जिसके लिए आप वहां गए थे, अगर आप समझदार हैं तो। अगर आप समझदार नहीं है तो बाजार के अंदर आप जितना पैसा लेके गए
जो सौदा आप लेने जा रहे थे वो तो लेके आओगे नहीं, पता नहीं आपके पैसे कहाँ खराब कर आओगे। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो समझदारी से, और उसी के मार्केट में तो अनंत चीजें हैं। वैसे ही इस मैनिफेस्टेशन के अंदर आपकी जो आत्मा आई है, जो साइकिक जो आपका ग्रो करता है एक जन्म से दूसरे जन्म के अंदर, वो अपने अंदर एक इनहेरेंट फेथ है उसका, वो एक इनग्रेन्ड कोई परमात्मा का एक सत्य लेके आता है। वो सत्य आविर्भाव हो उसका एक अपना तरीका है। इसीलिए उसी कक्षा के अंदर बैठ के कौन सी चीज है जो पढ़ाई में भी आदमी कितना भी अच्छा हो, इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, दोनों को एकेडमिक्स के अंदर बराबर ही नंबर मिले हों, पर सावित्री का, मां की पुस्तक का, किसी कलाकृति का, साहित्य का, एक व्यक्ति उसके अंदर गहराई से प्रवेश कर जाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें गहराई से प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों के पास पुस्तक है, तो दोनों जने संपर्क में तो एक ही पुस्तक के आ रहे हैं। दो जनों को वो ही सावित्री की पुस्तक या यही मां का जो कोटेशन है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने के दौरान ही इतनी सारी चीजें आ गई कि शायद हम एक एक पॉइंट को भी एलोबोरेट करें और कंसाइज तरीके से भी एलोबोरेट करें तो 10-15 सेशन तक मुश्किल ही ये एलिब्रेट हो सके। इतनी सारी चीजें आ गई इसके अंदर। तो कौन सी चीज है, किस कारण हम उसके संपर्क में आ रहे हैं? शब्द तो वही है, आप भी वही पढ़ रहे हो, अंग्रेजी किसी की भी, और ये ऐसी कोई अंग्रेजी नहीं है कि जो हम समझ नहीं पा रहे। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कि हिंदी अर्थ या आपको जिसके बारे में कोई परिचय न हो, आप सुपरिचित हैं सारे शब्दों से। कौन सी चीज है जो आपकी चेतना को बिलोंग नहीं कर रही? शब्द बिलोंग कर रहे हैं भाई, ये कौन सा शब्द है जो आपकी चेतना को बिलोंग नहीं कर रहा? तो इसमें न तो कोई सबकॉन्शियस की बात आ रही, जो कि एक व्यक्ति इसमें कह रहे थे सबकॉन्शियस, तो इसमें सबकॉन्शियस की क्या बात है? न इसमें कोई साक्षी तरीके से देखने की बात है। कितना अपने आप सामने तो व्यावहारिक उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारे सामने। ये ही कोटेशन, आंखें भी आपकी काम कर रही है, आपको शब्द भी पता है, उसमें कितनी गहराई से, और उसी गहराई से हम दुनिया के अंदर, वास्तव में तो जगत हमको दिख रहा है, इसी कारण तो हम कह रहे हैं हमारी चेतना के हिसाब से हमको दिख रहा है। अरे भाई, ये कोटेशन आपके लिए भी उतना ही सुलभ है। आप ये कहते हो कि मेरे को अंतरदर्शन तो नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, मान लिया, मेरे को कोई साइकी रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, मान लिया, वो डीपर चीजें तो नहीं हुई, पर ये पुस्तक तो सारों के पास है। ऐसा कोई इसमें शब्द नहीं है जो आपको, जिसका हिंदी अनुवाद या जिससे आप कोई कंफर्टेबल न हो, ऐसा कोई शब्द कि भाई जिसका आपको समझ नहीं आता हो, पर फिर भी हम इसके मायने में कितना प्रवेश कर पा रहे हैं वो तो अभी तुरंत अपने सामने प्रत्यक्ष हो गया। इसी उदाहरण को जब हम जगत के ऊपर लागू करते हैं, हमको लगता है हम जगत को देख रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, पर हम उतना ही समझ रहे हैं जितना कि हम इस कोटेशन को समझ रहे हैं, शायद उतना भी नहीं समझ रहे। क्या इससे थोड़ा इंडिकेशन तो मिल पा रहा है मारोदिया जी? मतलब ये उदाहरण तो कितना ज्वलंत है, हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये उदाहरण तो। जी, ये बात तो सही है। ये हम लोग प्रायः पाते हैं, ठीक ऐसा ही होता है। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसलिए हम लोगों को पहले अपने लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखना होगा और इधर-उधर की चीजों में नहीं जाना चाहिए हमें। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा। मैं खाली ये कह रहा हूं कि अभी आप जिस तरीके से इसको समझ रहे हैं, वो आपकी चेतना की जो स्थिति है उसके आधार पे इन शब्दों का आपको बहुत अच्छे से पता है। ये पैसेज हमको सबको सुलभ है, सबके पास ये टेक्स्ट है, क्यों हम इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे? और मां जिस चेतना से इसको कह रही होंगी, वो तो हमारे लिए मतलब कितनी एक अलग चीज हो गई। तो ये ही उदाहरण जब हम जगत के ऊपर लागू करते हैं तो थोड़ा सा एक इसमें एक हमको एक
मार्ग मिलता है, गेट ऐसा एंट्री का मिलता है जो हमको ये कहता है कि जिस तरीके से आप सोचते हो, असंदिग्ध तरीके से आप जगत को देखते हो कि आप जैसा देख रहे हो जगत वैसा है, उसमें थोड़ा सा एक ब्रीच होती है, आपको एक थोड़ा सा घुसने की एक एंट्री मिलती है कि नहीं, जगत ऐसा नहीं है। अरे भाई, जितना प्रवेश आपका इस कोटेशन में हो पा रहा है उससे भी कम प्रवेश तो आपका इस जगत के अंदर, और जैसा भौतिक जगत आपको दिख रहा है उसमें भी नहीं हो रहा। साइकोलॉजिकल है, प्राणिक है, मानसिक है, और इतने आध्यात्मिक जगत हैं, कितना प्रवेश हो पा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या हिंट कर रहा हूं स्नेहा? भैया मैं कुछ इस विषय में कुछ कह नहीं पाऊंगी। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके अंदर, जब इस कोटेशन के अंदर भी हम उतना ही प्रवेश कर पा रहे हैं जितना हमारी चेतना विकसित होगी, जितना हम कल्टीवेटेड होंगे उतना ही हम इसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आप ये देखिए कि कोई भाषा या कोई पुस्तक आपके सामने पड़ी है, भागवत के लिए वो क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। उसके अंदर भी जो शुरू के अंदर भागवत शुरू होती है तो एक का तो मोक्ष हो गया भागवत को सुनते ही, पर रात दिन जो भागवत सुनते हैं उनका कितने का मोक्ष होता है। हाँ, कोई चीज है जो उनको पता नहीं है क्यों रस लेती है, पर आपने कभी देखा उनका मोक्ष हो रहा है? या आप जानते हैं सावित्री के बारे में माँ ने क्या कहा कि परमात्मा आपको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो या सावित्री आप पढ़ रहे हो, वो एक ही बात है। अब ये तो बड़ी विलक्षण बात हो गई। तो कहां से कह रही थी माँ ये बात? अब इसमें देखिए, इसमें जो आप एक चीज कह रहे हैं कि चेतना जो एक यूनिवर्सल चेतना है, आप उसके अंग हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आप उसके अंग हैं, पर साथ ही साथ जो यूनिवर्सल चेतना है वो आपका ही प्रोजेक्शन है। किस तरीके से, कैसे? और जो परात्पर चेतना है, ट्रांसेंडेंट है, जो इसमें आती ही नहीं है, पर से भी परे जो है, मतलब यूनिवर्सल से परे जो चेतना है, पर से भी परात पर, वो जो चेतना है वो भी आपका ही प्रोजेक्शन है। पर आप मतलब एक लिमिटेड बीइंग, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो भी है, उस छोटे से व्यक्तित्व को हम उससे अगर अपने आप को मान बैठते हैं तो उसका अंग नहीं है। वो छोटा सा व्यक्तित्व तो है, वो उन सारे जो विशालताएं हैं उनका अंग है। इस दृष्टिकोण से आप एक परिवार के अंग हैं, एक समाज के अंग हैं, एक देश के अंग हैं, मनुष्य जाति के अंग हैं। उसमें भी और विशालताएं जितनी भी हो सकती हैं उन सब के आप एक अंग हैं। जैसे जैसे आप अपना स्टेशन बाहरी तरीके की बजाय अपनी आत्मा के ऊपर लेना शुरू करते हैं, आत्मा स्वयं अपने आप में एक जो समष्टिगत चीज है, एक यूनिवर्सल चीज है, उसका अंग है। पर आपकी कोई एक ऐसी चीज है, आपका कोई एक ऐसा तत्व है जिसके कारण ये सारी चीज आपको वैसी नजर आती है। इस दृष्टिकोण से कहें तो परमात्मा स्वयं भी आपका ही अंग है। मतलब आप परमात्मा के अंग हैं वो तो ठीक बात है ही है, पर स्वयं परमात्मा आपके ही अंग हैं। इसीलिए वेदांत जो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, क्यों हूं मैं ब्रह्म, मेरे अलावा कोई की सत्ता क्यों नहीं है, वो इस कारण से कि आपकी चेतना से जो चीज बिलोंग नहीं करती वो इसमें समाहित हो ही नहीं सकती, आप उसके संपर्क में आ ही नहीं सकते। अब ये तो बड़ी जटिल बात हो गई, यूं कहे तो बड़ी रिलीफ देने वाली बात है ये। अगर एक बार थोड़ा सा ये कड़ी जुड़ जाए कि क्यों ऐसा है, तो फिर से हम उसी तरीके से चलें कि एक ये सृष्टि कैसे हुई,
एक दृष्टा है और मतलब देखने वाली चेतना है, और एक मूल प्रकृति जो जिसको कि वो दृष्टा देखता है। ये दो के मिलने से ही और सारी सृष्टि हुई है। भाई आपके लिए जगत इसलिए अस्तित्वमान है क्योंकि आप उसको सेंस कर रहे हैं। जब आप अभिव्यक्ति में नहीं थे, आप अपने मां के पेट के गर्भ में भी नहीं थे, उस समय अभिव्यक्ति है या नहीं है वो प्रश्न भी नहीं उठता था आपके लिए। तो वैसे ही जब परमात्मा मैनिफेस्टेशन की ओर प्रवृत्त नहीं थे, जिसको हमारे पुराणों आदि के अंदर ये कहते हैं कि भगवान जो शंकर हैं अपनी समाधि अवस्था में है, कोई क्रिएशन नहीं है। अरे भाई, जब आपके लिए क्रिएशन तो अब आया ना, आप जब पैदा हुए तब आप क्रिएशन की बात कर रहे हो। आप उस समय की कल्पना तक भी नहीं कर सकते जब आप मां के गर्भ में नहीं थे। गर्भ में थे तब भी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो क्योंकि अब विचार के स्तर के ऊपर आपको ये कहा जाता है कि हाँ मेरा जन्म सन इतने इतने में हुआ, उससे पहले पहले की आपकी जो जितनी भी चीजें वो इतिहास हैं, पढ़ने लिखने से आपको पता चली। आपकी चेतना का तो अंग नहीं है, मतलब आपकी जो कॉन्शियस मेंटेलिटी है उसका तो वो अंग नहीं है। और उसमें भी बचपन में आप जगत को जिस तरीके से देखते थे वो ही जगत आज आपको कैसे नजर आता है। वो ही एक जो कला है, जो एक कोई मूर्ति है, वो एक मूर्ति किसी सामान्य व्यक्ति को कैसी नजर आती है। और जो ही आर्ट के प्रति सेंसिटिव व्यक्ति है उसको कितना रोमांचित कर देती है। आप जिस जिस फील्ड के व्यक्ति हैं, आपका जो जो प्रोफेशन है, उसकी जो बारीकियां आप जानते हैं दूसरा नहीं जानता है। तो उसी तरीके से जब इसके अंदर वो एक भाव आपका है जो उसको देखता है, आप इसके अंदर आए मैनिफेस्टेशन के अंदर, तो उस समाधि अवस्था से जब उनका प्रेरण किसकी तरफ हुआ, मैनिफेस्टेशन की ओर, तो तुरंत ही जब वो अपनी नेत्र खोलते हैं उसमें क्या है कि उनमें कोई एक ऐसी प्रवृत्ति आई मैनिफेस्टेशन की ओर, वो अपने नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोलते ही बाहर, क्योंकि बाहर तो भगवान शंकर से, क्योंकि वो तो परात्पर आदि पुरुष हैं, जिस जगह वो बैठे हैं वो जगह भी उनके अंदर है। जो सारे देवता जैसे उनसे उनकी शादी में, भगवान शंकर की शादी में पूछते हैं जी आपके पिताजी कौन, जी ये हमारे पिताजी। आपके दादाजी कौन, ये आपके परदादा जी कौन। और इन सब के आदि पुरुष, इनके सबके जो सर्जक है उनके पिता कौन, कम स्वयं। अब आपकी बुद्धि तो ये कह ही नहीं सकती कि आप अपने पुत्र के पिता कैसे हो सकते हो। मतलब पुत्र तो आपके जो पिता हैं उनके भी आप पिता कैसे हो सकते हो। तो वो कह रहे हैं आपके दादा ये, परदादा ये, और उनके जो पिताजी कौन, कह स्वयं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अपनी परात्पर सत्ता के अंदर वो सारे जगत को समाहित रखते हैं अपने अंदर। तो जैसे ही जगत की प्रवृत्ति की ओर परमात्मा का रुख हुआ, तो दो चीजें आपके, जैसे अपन किस तीन चीजों से बोलते हैं, सत, चित और आनंद। चित मतलब चेतना, पर चेतना तो है, कोई चीज को सेंस कर सकती है, पर कोई चीज ही नहीं है तो सेंस किसको करेगी। इसलिए उसके लिए सत होना आवश्यक है। चित देखेगा किसको, आप हो पर कोई चारों तरफ चीज ही नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और चीज है ये बताने वाला कोई नहीं हो तो चीज होने नहीं होने का पता क्या। आज अगर हम कितने भी गहन ध्यान में भी जाके कोई अंतर्दर्शन से पता करते हैं किन्हीं भी स्टेट्स का, चाहे हमने सच्चिदानंद का अनुभव प्राप्त किया पर कोई चेतना को जाके वहां देखा तब तो पता चला। कितना भी रिमोटेस्ट एरिया है पर कोई चीज वहां गई तो पता चला। श्री अरविंद जो है अतिमानस के स्तर के ऊपर गए तो पता चला कि अतिमानसिक स्तर है, उससे ऊपर भी स्तर है। इसीलिए इस स्केल में वो कह रहे हैं परात्पर की क्या भव्यता है। इसीलिए चेतना का जो अतिमानसिक स्तर है वो तो आध्यात्मिक जगतों में सबसे नीची श्रेणी है, पहला जगत है जो एंट्री पॉइंट है आध्यात्मिक जगतों के लिए। और उसके ऊपर अनंत प्रोग्रेशन है, उससे ज्यादा तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए जब वो चित्त है जो चीज देखती है, वो चेतना के अलावा जब वो चेतना देखने वाली है, वो जिस तरीके से चीजों को देखती है वैसा ही जगत है। कैसे, अब ये
और ऊपर के उदाहरण, अपन परात्पर के ये सारे उदाहरण तो छोड़ो, इसी जगत का वर्णन एक चुईया कैसे करती होगी? क्या वो रियल नहीं है? पर जैसे ही मानसिक चेतना आई, आपने कितने जटिल तंत्रों का विकास कर दिया, आपके समाज का विकास हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स का, कितने कितने शास्त्रों का, विचारों का, कला है, विद्या है, साहित्य, कितना विकास हो गया। किस चीज से? क्या शरीर की ताकत बढ़ गई? नहीं बढ़ी। तो आपकी किस चीज की ताकत बढ़ी? इंद्रियों की ताकत बढ़ गई? नहीं बढ़ी। अगर इंद्रियों की बात करें तो जिन जिन इंद्रियों की आप बात कर रहे हो उनके अंदर तो कई ऐसे जीव आपको मिलते हैं जिनकी दृष्टि आपसे बहुत ज्यादा शार्प है। पर आपकी अगर दृष्टि कमजोर भी हो तो भी आप विश्व को जितना अपनी चेतना में समाहित कर पाएंगे, क्या कितनी भी तेज दृष्टि किसी बाज की हो वो समाहित कर पाएगा? या आपकी जो इंद्रियां, आपके जो जितने भी ये हैं, किसी डॉल्फिन के लगा दी जाएं तो वो क्या जगत को देख पाएगी? तो आप जानते कैसे हो? इंद्रियों के माध्यम से? नहीं। या फिर आपके यही इंद्रियां हों और आपके ब्रेन लगा दिया जाए किसी ऊंट का, तो आप जगत का कितना का आस्वादन कर पाओगे? क्या जगत दिखेगा आपको? आप क्या ऐसे जगत के संपर्क में आओगे? मतलब आप ये सोचिए कि जो पुस्तक आपने सामने खोल रखी होगी, अगर उसके ऊपर से कोई कीड़ा निकल जाता है, कोई मक्खी उस पे बैठती है, क्या कभी उसकी चेतना में आ सकता है कि मैं पुस्तक पे बैठी हूं? मतलब उसको कोई सेंस है इस चीज का? वैसे ही जिस जगत में आप रह रहे हो, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर संरचना, एक ढांचा इस तरीके का है, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो कि हाँ जगत इस तरीके का है, पर वैसा जगत नहीं है। पेड़ जिस तरीके से इस जगत को देखता होगा, आप कह सकते हो कि वो अनरियल है? नहीं है। पेड़ आपसे तो लाखों वर्षों पूर्व से हैं, आप उनके कारण से जीवित हो, आपके कारण से पेड़ जीवित नहीं है। कौन सी चीज है जो इसको अभिव्यक्ति में ज्यादा रियल बोलती है? कौन सी चीज ऐसी है? चेतना। जो अधिकाधिक आप इस क्रम विकास में आप कहां हैं, आपके माध्यम से, क्योंकि रियल अनरियल का प्रश्न नहीं चल रहा, आप कितना प्रगाढ़ता से उसको देख पा रहे हैं, आप उस क्रम विकास में कितना आगे हैं। परमात्मा की ओर जाने की जो दिशा है, आप जगत को कितना समाहित कर पाते हैं। एक जो पशु की चेतना है वो आपके पास जीवन भर भी रह के, पूरे जीवन आपके साथ रहे, पर वो बिल्कुल उसके समझ में नहीं आएगा कि आप किस समाज में रह रहे हैं, आपके क्या तौर तरीके हैं। भावनात्मक तौर पर वो आपसे बहुत जबरदस्त रूप से जुड़ा हो सकता है, पर उसकी चेतना में कभी आपके तौर तरीके प्रवेश नहीं कर सकते। आप ये समझ ही नहीं सकते कि एक पशु की चेतना कैसे आपके क्रियाकलाप को सेंस करती होगी। उसी तरीके से जगत आपको जिस तरीके से दिखता है, वो एकमात्र आपकी चेतना का जिस तरीके का उसका गठन है, उसकी जिस तरीके की संरचना है, एकमात्र उसके तरीके से वो नजर आता है। तो इसमें अब करना क्या चाहिए भाई? अगर आपकी ही चेतना से जो चीज नजर आ रही है, तो आपको कोई चीज ऐसी नजर आ ही नहीं सकती। परात्पर तक भी जो नजर आता है, क्योंकि आपका स्वरूप एक छोटा सा, ये जो स्वरूप आप जिसको समझ के बैठे हैं, आपका जो सरफेस सेल्फ है, सतही जो सेल्फ है, उसमें हम कैसे उस क्रियाकलाप के पीछे जाएं। यहां जो वो खंडेलवाल जी कह रहे थे साक्षी भाव, तो सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करें कि हम एक मार्केट प्लेस हैं, इसमें हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम सोचें कि हम अपने घर में शांति से बैठे हैं, तो हम गलत मान बैठे हैं। हमने तो एक मार्केट प्लेस बना रखा है जिसमें कोई भी आ जाता है, कोई भी विचार बैठ जाता है, कोई भी वहां जम जाता है, तो उसमें शांति कैसे स्थापित हो सकती है? तो सबसे पहले तो वो मार्केट प्लेस अगर है, हमको उसके चारों तरफ एक फेंस करनी पड़ेगी चेतना की, अपनी जिस भी तरीके से, अपने अपने साइकोलॉजिकल तरीके हैं कि वो चीजें, वो विचार, आपके केंद्रीय जो विचार है उसकी बाड़ के इर्द गिर्द, जैसे आपका एक घर है, उसके चारों तरफ आप, उसकी फेंस है, उसके दीवार है, जो भी आप करते हैं, उसी तरीके से जो केंद्रीय आपके सत्ता है, विचार है, उसके इर्द गिर्द आप एक बाड़ करते हैं, उसके इर्द गिर्द आप चारों तरफ एक एक पूरे बनाते हैं प्रोटेक्शन, कि उसके अनुकूल विचार आए,
उसके अनुकूल भाव कर्म सारे उसके अनुकूल आए, यहां साक्षी की चीज तो काम करती है। पर फंडामेंटल चीज जो अपन बात कर रहे थे कि आपकी चेतना में कोई भी ऐसी चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस जगत में अब सोचिए बजट के अंदर ऊपर नीचे क्या होता है, या स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, आपका जो पालतू कोई पशु है क्या उसके फर्क पड़ रहा है, या तेल की प्राइसेस में कितना कोई फर्क पड़ रहा होगा, अगर वो टीवी के सामने भी बैठा है क्या उसको फर्क पड़ सकता है? कभी भी। वो हो सकता है कि किसी अभाव में मर जाए, भोजन न हो उसके अभाव में वो मर सकता है, पर अगर टीवी पे ये न्यूज आए कि कल से भोजन नहीं मिलेगा, क्या इससे प्रभावित होगा आपका पेट जो है? क्यों? क्योंकि उसकी चेतना में नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है, वो उसमें वो प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसी तरीके से आप उच्चतम संभव जितनी भी चीजें आपके अंदर प्रवेश करती हैं, वो भी इसीलिए प्रवेश करती हैं क्योंकि आपका ही वो अंग है। ये बात क्या समझ में आ रही है स्नेहा? अब ये क्या समझ में आई? थोड़ा तो इसको पैराफ्रेज करो, ये क्या समझ आ रही है, तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा आगे अपन चल पाए इसमें। स्नेहा, भैया एक जो अभी नई बात एक समझ में आई कि हम जो भी चीज अनुभव करते हैं या जो भी हमारे लाइफ में घटित हो रहा है, तो हम क्रम विकास में मतलब हम जब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो हम कहाँ कौन से स्टेज में हैं, हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज की चीजें हम अनुभव करते हैं। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जब जिस स्टेज पे जो चीज हमें अनुभव करनी है, शायद वही चीजें हम अपने कॉन्शियसनेस में उसका जो प्रोजेक्शन है हम अपने अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं। तो एक ये अभी एक बात समझ में आई बस। हाँ, पर क्रम विकास के अंदर तो आप एक स्टेज पे हो, हम यहाँ सारे बैठे हैं, वो मानवता की स्टेज पे सारे हैं। हम में से ये तो शायद सारे ही कहेंगे ना कि हम मानव हैं, तो क्रम विकास के एक पड़ाव पे तो हम कॉमन रूप से हैं। फिर वो कौन सी चीज है जो ये अंतर कर देती है कि इसी कोटेशन में हम कितना, मतलब मैं ये कह नहीं सकता कि जिस दौरान हम इसको पढ़ रहे थे कितनी कितनी चीजें गुजर गई, और वो गुजर गई, वो इतनी सारी सिंथेसिस अंदर से गुजर गई, मतलब उनका सामंजस्य है, उनका समन्वय है, वो इतना अंदर से गुजर गया, जिसमें फेथ किस तरीके से आत्मा में निर्धारित होता है और उसके कारण आप जगत को कैसे देखते हैं, प्लस आपका साइकिक कैसे इवोल्व कर रहा है, पूरी प्रक्रिया इसके अंदर सारी समाहित हो जाती है इस एक विचार के अंदर। और उसको अब व्यावहारिकता में क्या करना चाहिए भाई, दो दो चीजें हो गई। एक तो फंडामेंटल आधार जिस पे आप खड़े हैं, वो तो मूलभूत चीज हो गई, और अब आपको करना क्या चाहिए इसके लिए। तो ये दोनों बातें हैं, ये तो मेन तो स्ट्रेस इसका किस चीज के ऊपर होना चाहिए कि डिफिकल्टी को ओवरकम कैसे करें। पर उसके लिए साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर जो आप उसको उसके अंदर आपको बनाए रखेगा कि नहीं मेरे को इसमें हार नहीं माननी है, उसको संबल कौन प्रदान करेगा? उसको तो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो प्रदान करेगा। तो दोनों तरीके से हमको इसको समझने की जरूरत है। इसमें आपका जो बीइंग कितना व्यापक है, बस एक चीज मैं पढ़ देता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा सारे अपने पॉइंट्स बनाएंगे, और ये पॉइंट्स क्लास से पहले भेजो मेरे को कि इसमें क्या क्या चीजें और शामिल हैं। इसमें तो सारी फिलोसॉफी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अगर गहनता से देखें जो कि उस पूरे के अंग न हो। इसलिए श्री अरविंद एक जगह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन द डीप देयर इज ए ग्रेटर डीप, कि गहराइयों में उससे भी और महत्तर गहराइयां हैं। इन द हाइट्स ए ग्रेटर हाइट, और जो हाइट्स जो हैं, शिखर हैं, ऊंचाइयां हैं, उन ऊंचाइयों में भी उससे उच्चतर ऊंचाई है। सूनर शैल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी, जिसको आप अनंतता कहते हो, परमात्मा है, अनंत है, जो भी आपने नाम दे रखे हैं,
उसके बॉर्डर्स मतलब उसके जो लिमिट्स है कि आपने सारी चीज खोज ली, इन्फिनिटी क्या है वो सारे अनुभव कर लिए, शायद उस पे आदमी जल्दी पहुंचे बजाय किसके, देन एट द फुलनेस ऑफ हिज ओन बीइंग, अपनी खुद का जो बीइंग है उसका जो फुलनेस है उसके बॉर्डर्स पे तो शायद ही वो कभी पहुंचेगा, क्योंकि आप इतने विशाल हो, आप जो अपने आप को मान रहे हो, मतलब कितनी गंभीर बात है ये। सूनर शैल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी, अनंतता के जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स मतलब आपने सारी चीजें खोज ली अनंतता की और उसके आप पूरे बॉर्डर्स तक पहुंच गए हो, वो तो शायद आप कर लो, पर उससे भी भारी बात आपके लिए क्या है, देन एट द फुलनेस ऑफ हिज ओन बीइंग, अपनी खुद की जो सत्ता है, आप अपने आप को जो मान के बैठे हो, पर आपका जो सच्चा स्वरूप है वो इस इंफिनिटी से भी बहुत परे है। फॉर दैट बीइंग इज इंफिनिटी, क्योंकि आपका जो बीइंग है वो स्वयं अनंत है, इज गॉड, वो परमात्मा है। और इसका रेफरेंस जो है ये श्री अरविंद का 12वां वॉल्यूम है कंप्लीट वर्क्स का, ऑनलाइन आपको मिल सकता है और 5 नंबर पेज है उसका, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। मैं खाली इसके छोटे छोटे ये चीजें टच इसलिए करना चाहता हूं कि एक ये अपने को पता चले कि ये पहेली इतनी सरल नहीं है। पर सरल नहीं है का मतलब इसमें जितना हम जाएंगे उतना टेरिटरी तो एटलीस्ट कवर करेंगे। तो जिसको आप अनंतता कहते हो, जिसमें आप कहते हो हम तो बहुत छोटे हैं, इसको अगर सही परिप्रेक्ष्य से देखें तो श्री अरविंद कह रहे सूनर शैल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी, देन उसका जो खुद का बीइंग है उसके बॉर्डर्स तक जो है वो तो शायद ही पहुंचेगा, वो तो जो इंफिनिटी है उसको तो पहले शायद पता भी कर ले वो। अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी देन एट द फुलनेस ऑफ हिज ओन बीइंग, अपने खुद के बीइंग की जो परिपूर्णता है वो आप हो, तो क्या आपके पास कोई बहाना रह जाता है? अब इस माध्यम से या इस बात से अब आप अपनी सारी समस्याओं के ऊपर इस कोटेशन को, मतलब इस कोटेशन के ऊपर सारी समस्याओं के ऊपर प्रोजेक्ट कर इसके ऊपर करके देखो तो आप कहते हो भाई ये तो टिकती नहीं। फॉर दैट बीइंग इज इंफिनिटी, क्योंकि आपका जो बीइंग है, जो सत्ता है, वो तो अनंत है, इज इंफिनिटी, इज गॉड, वो परमात्मा है। अगर आपका बीइंग, इसी अर्थ में मैं ये कह रहा था कि आप स्वयं जो परमात्मा के संपर्क में भी आते हो वो भी आपका ही अंग है। आप किसी भी परात्पर की बात करते हो, किसी भी चीज की आप बात करते हो, क्योंकि कुछ चीजें मैं अभी कहना नहीं चाह रहा यहां, वो सारी आपका ही अंग है, पर आप मतलब आप अपने आप को क्या मानते हो उसके ऊपर। तो इस नोट के ऊपर अगली बार इसको और अपन गहराई से लेंगे। इसके आपके पॉइंट्स जो हैं, आप मेरे को अपने अपने दिन बता दीजिए जब आपके पॉइंट्स मेरे को मिल जाएंगे। स्नेहा, आपके पॉइंट्स कब तक मिल जाएंगे मेरे को, जिसमें एक्चुअल में अपन कितना गहराई से इसमें जा रहे हैं। जब तक हम उतनी गहराई से इसका चिंतन नहीं करेंगे तो मां श्री अरविंद को सतह के ऊपर नहीं समझा जा सकता, और जब तक इतना हम इसका विश्लेषण न करें तब तक उसका लाभ भी नहीं है। क्योंकि सतही रूप से तो आपने सबने पढ़ के लगा हाँ भी ठीक ही बात है कि हमको उस डिफिकल्टी के लिए और मेहनत करनी चाहिए, पर किस दिशा में और कौन सी को आप डिफिकल्टी मानोगे और किसको आप कहोगे कि ओवरकम कर लिया। नौकरी नहीं लग रही तो मैंने पूरे प्रयत्न किए उसके लिए, मैंने जो भी बैक हैंड भी मेरे को कोई चीज देनी पड़ती है, कोई ब्राइब दी, कुछ भी किया, और फिर मैं उसमें सफल हो गया नौकरी लगवाने में, तो कहता है देखिए मैं सफल हो गया। तो क्या मतलब ये कह रही है माँ, क्या कह रही है? ये पॉइंट्स आप अपने अपने मेरे को, जीतू आपके पॉइंट्स कब मिल जाएंगे, आप मेरे को अपने अपने दिन बता दीजिए।